ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਏ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਥਾਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਤੇ ਤਵੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੇ। ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਜਦੇ ਸੀ, ਸੁੰਡ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਧਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੁੰਡ 'ਚ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ। ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਘੇਰ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਲਵੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
आनंदपुर साहिब के संबंध विच, जिस दम आनंदपुर में सतगुर मुकीम थे, हम राह घर के लोग थे और कुछ नदीम थे। चारों तरफ से किले को घेरे गनीम थे, टूटे से रिज के दिल सिंगा दो नीम थे। ये आनंदपुर साहिब के किले बारे अल्लाह यार खान जोगी ने लिखिया भी किन्ना चिर घेरा पिया रहा आनंदपुर साहिब के किले में। पर कहते सिखों की आरजू थी कि लड़ कर शहीद हों, सतगुर जे सोचते थे ना जाया मरीद हूँ। कहते सिखां दी चाहना सी महाराज दे खालसे की लड़ के सी शहीद होइए, अपना आप महाराज तो वार दिए सच्चे पातशाह। इस तरह लिखिया उनकी बाबत, जिवें औरंगजेब बादशाह दा पैगाम आया सी कसम खान दा, वो भी अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा सोहना परोया। कहते सरहद के नवाब का पैगाम लाया है, फरमाए सतगुरु से लाओ हमारे पास। यह पाके हुक्म तुरत गया, उठ के एक दास। कहते जो सरहद का पैगाम आया महाराज वास्ते, महाराज ने सिख नूं भेजा भी लियाओ उन्होंने पास। लाया शफीर जिस पे था छाया हुआ हिराश, शरीफ एलची जड़ा सी वो लेके आया सी संदेश। दीवान खालसों का जो देखा गया हवास, सतगुर ने देखे हौसला पूछा ये प्यार से, पैगाम क्या तू लाया है फौज शरार से। ये शरारती जिहड़ी फौज है, शरारती सरकार है, जिन्हां शरारतां घड़ियां जा रही ने महाराज ते। ये शरारती सरकार का की पैगाम ले गए। कहने लगा हजूर का रुतब बुलंद हो, नानक की शान 10वें गुरु में दुचंद हो। कहने लगा सच्चे पातशाह मेरा एक बाल बुलंद हो तुहाडे अगे। सच्चे पातशाह अगे हो एलची कहंदा नानक की शान 10वें गुरु में दुचंद हो। गुरु नानक की शान स्वरूप हो तुसी, 10वें स्वरूप हो तुसी। हादी हो एक जमाने के तुम दर्दमंद हो, दर्दी भी हो तुसी लोकां दे। देखो उन्हां दा भेजिया जिहड़ा एलची वो महाराज की तारीफ कर रहा। कीजे मुआफ बात अगर ना पसंद हो, कहते महाराज जे मैं कोई गलत बोलिया होवे मैनू माफ़ी दे दियो। भेजा है मुझको नाजिम सरंद ने यहाँ, फरमान शाही दिल्ली के पाबंद ने यहाँ। इस करके महाराज मैनू तां सरहंद दे जिहड़े वजीर खान वा उन्हें भेजा ते फरमान होया दिल्ली सरकार दा, दिल्ली दा। इस करके अगे भी अल्लाह यार खान जोगी ने लिखा है, इसने कहा कि हमको नहीं बैर आपसे, रखते नहीं है कद हरम ओ दैर आपसे। सच्चे पातशाह कहते साडा किसी नाल वैर नहीं, असी मंदिर ते मसीत नाल कोई वैर नहीं रखते। पाते हैं सब बशर सब खैर आपसे। कहने लगा सच्चा पातशाह तेरे दर तो सारे बख्शिशां प्राप्त करते हैं, अपने वजह तमें हुए गैर आपसे। दिनों धर्म को छोड़ के अंधेर हुए हैं कुछ, नाजिल पहाड़ पर से दरिंदे हुए हैं कुछ। कहते कुछ लोग दरिंदे बन गए ने, जानवर बन चुके हैं, वैर विड लिया गुरु घर नाल, उन्होंने दरिंदे लिखे है 10वें पातशाह महाराज, जानवर हो चुके हैं लोग। तो कहते ने फिर सच्चे पातशाह नूं कहा, अल्लाह यार खान जोगी कहंदा छोड़ो आनंदपुर यह शाही मकाम है, आनंदपुर छड्ड दो जिहड़ा शाही मुकाम बनाया तुसी घर बनाया। मखदूस इस जगह पे तुम्हारा क्या काम है, फौजों से और कलों से क्या तुमको काम है, लड़ना ही जब नहीं तो यह क्यों धूमधाम है। कहते फौजा नाल तुहाडा की वास्ता रखण दा। महाराज ने इंज लिख के भेजा, हैर खैर इसी में अपने कहे पर अमल करो, बेशुद हमदमो कौन नजरो अजल करो। कहते इहदे ते अमल करना करो, आनंदपुर नूं छड्डना करो।
तो कहते सच्चे पातशाह कहते दुनिया के हम तो दीन के तुम पातशाह हो, दुनिया के हम तो दीन के तुम पातशाह हो, आता नहीं कि तुम्हें दुनिया की चाह हो, सतगुर के पास किस लिए फौजो सिपाह हो, नानक के जानशीन को क्यों हुब या हो, सिंहों को साथ लेके यहाँ से सिधारिए, वाहिगुरु जी की फतेह का नारा पुकारिए। ऐ महाराज नूं अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है भी कहा गया इत्थे फतेह बुलाओ तुसीं चलो। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे असीं लड़ना नहीं चाहुंदे सी, सानूं मजबूर किया इन्होंने, कई चिर तो घेरा पा के रखिया, कई इन्होंने चालां चलियां, कई शरारतां कीतियां, पैगाम सुन के सतगुरु खामोश हो गए, पैदा तबीयतों में मगर जोश हो गए, दर पे निकलने के सितम कोश हो गए, जाते हैं हम तो बोलेंगे रुपोश हो गए। इस तरह लिखदा है महाराज के संबंध विच। सच्चे पातशाह कहते बेवजह हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो, सतगुरु महाराज कहते सी बेवजह नहीं चाहते सी, बेवजह हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो, उससे लड़ेंगे लड़ने की जिसको उमंग हो। हुण जे उहदे अंदर ही उमंग है लड़न दी ते कहंदे ने अगे ठोकर से फेंक देंगे जो रस्ते में संग हो, जिहड़ा साडे रस्ते दा पत्थर बनेगा फिर उहनूं ठोक देवांगे। महाराज कहंदे सर इसका काट लेंगे कहाँ जिसने तंग हो, जिन्हें फिर ज़्यादा किया फिर महाराज कहंदे सिर कट्टिया जाएगा उनका। सच्चे पातशाह एडे सूरबीर वीर फिर गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह सानू सच्चे पातशाह ने जुल्म करना भी नहीं दसिया ते जुल्म सहन वास्ते भी नहीं किया है। ना जुल्म करना भै काहू को देत ने नह भै मानता, गुरु तेग बहादुर महाराज दे वाक ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पिता दे, ना डर देना है ना डर किसी का रखना है मन दे विच। मजबूर हो गए लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएंगे। महाराज कहंदे असीं मजबूर हो गए ते हुण कहंदे फिर साडी सफाई तेगे दिखाउणगे, फिर तेगे तेगे चलणगे। हुण ये अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा सोहना लिखिया। कहंदे महाराज सच्चे पातशाह ने जदों उन्हां दी कसमां ते बाद विच उन्होंने कसमां खादियां भी महाराज नहीं नहीं असी कुछ नहीं करते, तुसी एक बारी छड्ड दो। उदों महाराज ने तैयारी की आनंदपुर साहिब नूं छड्डण वास्ते, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह ने जफरनामे दे विच भी महाराज दे वाक होंदे ना कि महाराज ने उन्हां ते कसम ते भरोसा किया भी शायद खुदा परस्त ने मनते ने, खुदा ते भरोसा रखते हैं। फिर अल्लाह यार खां जोगी बड़ा सोहना लिखता है जदों सच्चे पातशाह अपने परिवार नूं काफले के रूप विच आनंदपुर साहिब का किला छड्ड के जा रहे हैं। तारों की छाँव किले से सतगुर रवा हुए, कस के कमर सवार थे सारे जवा हुए, आगे लिए निशा कई शेरे या हुए, कुछ पीछे जा निशार गुर दरमिया हुए। कुछ पीछे कुछ अगे महाराज दे नाल, चारों पिछर हजूर के हमरह सवार थे, जोर आवर और फतेह अजीत और जुझार थे। ते कहंदे जीत ते जुझार महाराज दे नाल सी। अल्लाह यार खां जोगी कहंदे खालसा फिर सतगुरु नूं कहंदा है, सतगुरु जहाँ पे अपना पसीन गराते थे, सिंह उस जगह पे अपना लहू तक बहाते थे। कहंदे सतगुरु जिस जगह ते अपना पसीना गिराउंदे सी, सिंह उत्थे खून बहाउण तक जांदे सी, अपना खून वारन तक जांदे सी। इन्ना प्यार सी खालसा गुरु नाल खालसे दा। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है उस थां ते सिंह अपना खून बहाउण वास्ते तैयार हो जांदे। फिर सच्चे पातशाह इत्थों तुरे ने जदों आनंदपुर साहिब
ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਚਰਨ ਪਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਸਦੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, सतगुर अब आन पहुँचे थे सिरसा नदी के पास। अल्लाह यार खान जोगी कहता सिरसा नदी कोल पहुँच गए महाराज। थे चाहते बुझावे वह बार हैं पहर की प्यास। इशनान करके और बदल के न्यास लिबास। वाहिगुरु का नाम जपे और करे सपास। जप जी का जाप इस घड़ी का करना जरूर था। पढ़ के ग्रंथ और बढ़ाना शरूर था। अल्लाह यार खान जोगी कहते जो इत्थे टाइम ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ हो गया, जो ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ वक्त होया तो महाराज सच्चे पातशाह दे दरबार दे विच नगारा वजदा सी। कहते नगारी सिंह ने नगारा वजा दिता। मार कहते 2 बज गए ने? कहते हाँ मार कहते 2 बजे गुरु के दरबार सजदे सी आनंदपुर साहिब। सानू भुख लगी है। प्यारे भाई दया सिंह जी कहते ने महाराज आनंदपुर साहिब विच रस्त पानी वाधे पए नूं कई दिन हो गए ने। अज अपना आनंदपुर साहिब छड्ड के खालसा सरसा दी नदी ते कंढे ते बैठा है ते छकण वास्ते मंगदे हो। मार कहंदे ओ भुख नहीं लगी सानू, साचे नाम की लागै भूख। सच्चे नाम दी भुख लगी है। 2 बजे आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा सी, बाणी दे जाप हुंदे सी, वो पाठ करो। देखो महाराज दे नेम 'च फर्क नहीं है, सानू समझा रहे ने। जिन्ना मर्जी जीवन में उतरा चढ़ा जे, पर तेरे नितनेम 'च फर्क नहीं पैना चाहिए। तेरा तो माड़ा जिहा सिर दुखदा है, नितनेम नहीं हुंदा। सवास तां चलदे ही हुंदे ने ना शरीर दे। जब तक सवास ने उद तक तेरा नेम पक्का होना चाहिए। कह लगे इत्थे फिर एक पासे जोड़ी वजदी है, एक पासे फिर ढालां ते तेगां भी खड़कनियां शुरू हो गई सी। इत्थे फौज ने घेर लिया सी, वो भी आ गई सी इधर पिछे। बाबा अजीत सिंह भाई उदय सिंह ने ते बड़े जोर दिखाए, बड़ा जंग किया। कहते इधर महाराज सच्चे पातशाह आसा दी वार दा कीर्तन शुरू होया। बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जेसो चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार। इते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। इस तरह आसा दी वार दे जाप हो रहे ते सिंह संगतां भी नाल जाप करदियां ने।
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ 20-20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੀ। 20-20 ਸਾਲ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੈਸੇ ਸਰਸਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਥੇ ਚਾਹਤੇ ਬੁਝਾਏ ਵੋ 12 ਪਹਿਰ ਕੀ ਪਿਆਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਪ ਜੀ ਕਾ ਜਾਪ ਇਸ ਘੜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ बढ़ाना ਸਰੂਰ ਥਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰੂਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੀ। ਥਾਂ ਸਰ ਪੈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ, ਸਾਜੋਂ ਕੀ ਜੇरों बम का चढ़ाऊ उतार का, मनसा बा गल की तर के दिले बेकरार था, मौका मिले तो कर लेंगे भजन किरदार का। इस तरह अल्लाह यार खान जोगी कहता भी महाराज सच्चे पातशाह भगती के संबंध विच, नाम के संबंध विच, कि सच्चे पातशाह ने कहा सी मनसा बा कल की धर के दिले के बेकरार का। बेकरारी भी अज आसा दी वार दा कीर्तन नहीं होया। मौका मिले तो कर लेंगे भजन किरदार का। फिर वो मौका वेख के फिर सच्चे पातशाह ने उत्थे दा अमृत वेले दा नेम जिहड़ा उत्थे पूरा कीता। ते अगे फिर जिहड़ी दुश्मन दी फौज पिछों आ रली, जंग शुरू हो गया। उनकी बाबत भी अल्लाह यार खां कहता है, बदबख्तों ने जो वादा किया था बिसर गए, ना मर्द कौल करके जबां से मुकर गए। बदबख्तों, बड़े भैड़े बंदे, बदबख्तों कहते जिहड़ा वादा किया सी उन्होंने, सौहां खाधियां सी असीं कुछ नहीं कवांगे, कहते बिसर गए, भुलातियां उन्होंने सौहां। ना मर्द कौल करके जबां से मुकर गए। कौल कहते बचन, बचन करके ना मर्द, मर्द नहीं मारे। अल्लाह यार खान जोगी कहता मर्द नहीं सी, जबान मर्द दी हुंदी है, जिंदी जबान नहीं हुंदी ना मर्द लिखिया उन्होंने। ना मर्द कौल करके जबान से मुकर गए, गोबिंद सिंह के शेर भी फौरन बिफर गए। कहते वो भी फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शेर सी, जिमें जंगल विच टहरते फिरते ने, फिर इस तरह सिंह शिकार की भाल विच आओ। फिर तलवारें सूंत सूंत के रन में उतर गए। फिर तलवारां कहते खिच खिच के रन दे विच उतर गया गुरु का खालसा। इस तरह सच्चे पातशाह देखते रहे, उत्थे जंग भी हुंदा रहा। ते आसा दी वार दा कीर्तन जदों पूरा होया, सच्चे पातशाह ने समा नाजुक जान के कहा कि हुण खालसा सरसा नूं पार कर दे, सरसा तो पार हो जे खालसा। सतगुरु दा बचन सी, सब ने मन्निया। ते कुछ सिंह महाराज ने पिछे लाए सी, जेड़े भाई उदय सिंह, भाई बाबा जीत सिंह वड्डा साहिबजादा भी फौज नूं मगरों रोक के रखना। कई कहते उधरों भी दूजे पासे भी सरसा दे फौज चढ़ के आ गई सी। उधर भाई बचित्र सिंह नूं पहलां भेज दिता, उधर लोहा वो लेंदे सी, उधर दी फौज वो रोकते पे सी। इत्थे सच्चे पातशाह दे बड़ा सोहना जिहड़ा परिवार सी वो खेरू खेरू हो गया, कई हिस्सों में वंडिया गया। महाराज दा परिवार
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਜੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਛੇੜਤਾ ਰਾਤ ਜੰਗ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸਾਬਰ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ। ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਗੜੀ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਜ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਤੋੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੁੰਮੂ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਂਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਈਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਾਂ, ਫੱਟ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਸੀ ਫੱਟੜ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਰਸਾ ਦੇ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 38 ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਸਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ
ये घर मेरा नहीं तुहाडा है, तुसी किरपा करके चरण पाओ। महाराज कहणगे समा आग्ञा नहीं दिंदा सानू, साडा सिंह है, साडा खालसा भाई बचित्र सिंह जिहड़ा इन्ना जख्मी हो चुका सी, जिन्हों महाराज ने कहा सी सरसा दे पार हो के अगली फौज नूं लोड़ रोक। साध संगत जी फट हो के ना वार हो के विकड़ कोई इस पासे कोई इस पासे, सारा शरीर का खून ही निचड़ चुका सी, सारे शरीर का खून निचड़ चुका सी। इतिहास कहता है तो जो लैके गए सी महाराज 10वें पातशाह घोड़े ते मुद्दा पा के, बाबा बुढ़ा सिंह के घोड़े ते, एक खालसा सी महाराज दा सिंह सी, उनके घोड़े ते मुद्दा पा के लैके गए सी भाई बचित्र सिंह। खून बड़ा वह चुका सी ते महाराज कहण लगे जे बच गया ना ठीक है, सेवा करियो साडा खालसा, ते जे ना बचिया फिर अंतिम संस्कार कर दियो। अल्लाह यारखां जोगी कहंदा ठीक महाराज। साध संगत जी इन्हां दा परिवार दसदे ने 6वें पातशाह तो गुरु करदा श्रद्धालु, 6वें पातशाह जिहड़ा गनी खां नबी खां सी, जिहड़े उच दा पीर बना, वो भी इन्हां दे रिश्तेदार विचों सी, इस्लामी वीरां दी रिश्तेदारी विचों सी। निहंग खां कोटला निहंग खां। सो महाराज सच्चे पातशाह अगे तुर पे। जो महाराज अज का दिन सी 7 पोह का, क्योंकि 6 पोह रात को महाराज ने आनंदपुर साहब का किला चले, तो जो महाराज इत्थे रोपड़ कोल आए दिन जब चढ़ गया, इत्थों फिर महाराज गढ़ी वाल नूं गए, उत्थे शाम पै गई सी। इधर फौजां पिछा करदियां होइयां कोटला निहंखां दे घर आ गई, नाले खून भी वगदा सी भाई बचित्र सिंह दा, नाले घोड़ियां दीयां पैड़ां निशान। देखिया इहदे घर तक आउंदे ने, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए ने, कहंदे नहीं इत्थे नहीं। वो अंदर कौन है? अंदर उनकी धी बैठी सी मुमताज। भाई बचित्र सिंह के शरीर उत्ते चादरा पाया हुआ सी, टक्या हुआ सी शरीर नूं, कोई स्वाद चलता सी, ते उनकी धी उत्थे बैठ के सेवा करनी। गुरु दे सिंघां नाल गुरु के नाल इन्ना प्यार सी, ते कहंदे जाबर खां जिहड़ा रोपड़ का नवाब पुछदा है निहंग खां नूं, कोटला निहंग खां नूं, वो कौन है अंदर? कहंदा वो मेरा दमाद है, मेरा जवाई है, ते मेरी धी बैठी है। वेखो सिखो मुसलमान किन्ना प्यार करते सी। सिख दी जान बचाउण वास्ते, सिख दी जान बचाउण वास्ते उन्होंने अपना जवाई बना लिया, अपना दमाद बना लिया। तो कई लोग कोई ने सिख नूं बदनाम करने वास्ते की कुछ करते हैं, तो कित्थे गुरु की खुशी मिल जाती। फिर एक पासे मुसलमान वीर ने सिख की जान बचाने वास्ते पता ना लग जे, तो कहते जवाई मेरा दमाद है। वो तो चले गए बई जे जवाई है दमाद है फिर अपना की इत्थे काम है, अगां नूं लंघ गए। बाद विच भाई बचित्र सिंह जी पूरे हो गए, सवास कोई चलता सी, भावें मुसलमान वीर दफनाउंदे ने, पर गुरु का हुक्म सी संस्कार करना। उन्हें अंतिम क्रियाक्रम किया भाई बचित्र सिंह। तो हुण इहदी जिहड़ी धी सी मुमताज, इत्थे साध संगत जी जदों आपां सरहंद गए सी ना फतेहगढ़ साहब, थोड़ा जिहा अगे जाने अगे बस्सी पठाणा हुंदा, बस्सी पठाणा, उत्थे मंगी हुई सी मुमताज, पठान नाल मंगी हुई सी। ते कहन लगा धीए हुण विआह दा दिन भी नेड़े आउंदा, तेरा निकाह किया जाना। कहंदी अबू जान
ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਾਂਗੀ ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਗੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪੁਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਰਾਏ ਰੂਪਚੰਦ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਯਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਚੱਲ ਦੀਏ, ਹਾਲਤ ਪੈ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਆ ਗੌਰ ਚੱਲ ਦੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰਤਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮੇ ਫਿਲਫੌਰ ਚੱਲ ਦੀਏ, ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਰਜਾ ਪੇ ਬਹਿਰ ਤੌਰ ਚੱਲ ਦੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੰਦੀ ਬਾਬਤ ਅੱਲਾ यार खां जोगी ने बड़ा सोहना पुरोया। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, यह देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाज़त नहीं है हमें रन की, मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। ये रात को आग्ञा मंगी सी अल्लाह यार खां जोगी कहता, खालसे ने महाराज को खालसे ने कि महाराज मिट्टी तक उड़ा के रख देंगे रातों रात, किते आग्ञा दे दो तुसी। इन्ना प्यार सच्चे पातशाह। जदों सारे अंदर प्रवेश हो गए, कुछ सिंह महाराज ने पहरे ते ला दिते, ममटियां ते खिलार दिते। 8-8 सिंह महाराज पहरा कर दें। भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह, तुसीं जाओगे ना, आप गए सी जेड़े गेट तो आप अंदर आए सी, उपर चढ़े सी गढ़ी साहब, गोल उपर बनया अंदर, जो गढ़ी के अंदर प्रवेश होने चढ़ाई चढ़ के, वो गेट ते पहरा सी उन्हां दा, भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह। ते सच्चे पातशाह इत्थे गढ़ी वल वेख के ना, कईयां ने भी कहा कि महाराज ने खंजर कढ़ के गढ़ी दी मिट्टी नाल ऐन ला के उड़ा के मिट्टी दी तोड़न कुछ कहा। ते प्यारे भाई दया सिंह ने सुनिया। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, महाराज कहते ने जिस खिते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है। कल लुट के अपना सारा कुछ लुटा देना, कल नूं गुरु कलगीधर पातशाह अल्लाह यार खां जोगी कहता, पहला महाराज ने वचन किए, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। महाराज ने ऐं वचन किए, कहते अल्लाह यार खां जोगी कहते प्यारे भाई दया सिंह, असीं कहते सी ना जिथे जाना है
वो आ थां है। जिथों असी लुट के जाना है वो ये थां है। जिथे असी अपने बच्चों को कटाउना है ये थां है। ये धरती भी कह देती है ठिकाना ये है, मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। सो साध संगत जी, उस तो बाद महाराज गढ़ी दे विच इस तरह फिर के पहरे के तौर पर महाराज देंदे ने। क्या भी सी महाराणी सिंघां नूं भी असीं रात का पहरा सी करां। जिहड़े पहरेदार सी, तुसीं बड़ी लंमी यात्रा ते कल नूं जाना है, बड़ा पैंडा तय करना, तुसीं पता सी जंग विच शहीद होना है, इस करके अज का पहरा मैनू करन दो। इस तरह भी कुछ इतिहासकारां दे ख्याल ने। कहंदे सच्चे पातशाह वो गढ़ी दे विच जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ दे दस्तारां ढिलियां होईयां सी वो कस रहे सी, जिन्हां दे वाल खिलरे हुए सी वो महाराज वाल भी सही कर रहे सी उन्हां वालां केसां। कहंदे जब किला में उतरी थी सतगुरु की सवारी, वाहिगुरु की फतेह दलेरों ने पुकारी। अल्लाह यार खां जोगी कहंदे इत्थे आके फतेह बुलाई ਸਿੰਘਾਂ ने जदों महाराज इत्थे सवारी उतरी। कहंदे खेमे के इस दादा वही उठ के किसी ने खोली कमर आराम को हर एक जरी ने। कहंदे महाराज वास्ते भी आसन लाया गया, बस्तर ला के ना अपने भी जिमें महाराज गदेलियां दे बहिंदे हुंदे सी, भी महाराज वास्ते तां आसन लगना चाहिए ना, उच्चा जिहा आसन लाता सी। सियाल दे दिन भिजे बस्तर सरसा नूं पार करके आए सी, भिजे बस्तरां तो बगैर ही सौ के वेख लिओ बाहर, पता लग जाएगा। उंज ही भुंजे घर ही अपने भुंजे पै के वेख लिओ अंदर ही नाले कमरे दे विच, फिर भी थोड़ा जिहा पता लग जाएगा। इस करके कहने लगे महाराज वास्ते आसन लाया गया। रहरास का दीवान सजाया गुरु जी ने शाम दा। वेखो नेम विच फर्क नहीं, रहरास भी कहते उत्थे होई। मिल जुल के सर शाम भजन गाए सभी ने, सारिਆਂ ने मिल के नाल जाप कीता। ते अल्लाह यार खां योगी कहंदा कुछ लेट गए खाक पे जमीन पोश बिछा कर। पोश विछाद मतलब की है, घोड़ियां दी काठी थले जिहड़ा कपड़ा हुंदा वो तो बिस्तरे थोड़ा सी, वो काठियां वाला कपड़ा थले विछा के ठंडी धरती आपो दे दिन। अब कंधा नूं हथ लाओ, कंधा ठंडियां होईयां ठंडियां ठार, तो जमीन क्यों ना ठंडी होएगी। वो घोड़ियां दी काठियां वाला कपड़ा ला के थले विछा के कहंदे ਸਿੰਘਾਂ ने राम कीता। पहरा लगा देने कई तलवार उठाकर। कहंदे पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर, कई पहरे ते तैनात हो गए। गोबिंद भी सबबाश हुए खेमा में जाकर, देखा तो वहाँ बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज खेमे जे गए ने, उत्थे अपना सिर झुका के महाराज ऐ बैठे ने। कहंदे अगे झुका के बैठे ने, की कर रहे ने अगे। अल्लाह यार खां कहंदा जो महाराज कह रहे सी सिर झुका के, वाह गुरु है मुंह से निकलता है तू ही तू मुंह से निकलता। कहंदे सिर झुका कर महाराज उत्थे गढ़ी विच वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह तो निकलदा है, ते ऐ कह रहे ने है तू ही तू मुंह से निकलता। ये आवाज़ आ रही सी। ते कहंदे सच्चे पातशाह जदों अद्धी रात गुजरी, अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है जब 1.5 घड़ी रात गई जिगर खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में।
सतगुरु कड़ी तो खेमे तो बाहर आ गए। गरीब नवाज सतगुरु जी जो अद्धी रात हुई 12 बजे तो बाद टाइम होया, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। कहते कदमां नाल तां चलदे सी पर है अकाल पुरख की याद विच सी। बोले ये खुदावन हूँ खुश तेरी रजा में। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे बाहर आके, हे खुदा अकाल पुरख मैं खुश हाँ तेरी रजा से। कमाल है, सतगुरु महाराज की वार्ता पढ़ के सुना के दिल कंब जाते हैं तो महाराज कहते मैं खुश हाँ तेरी रजा च। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। कल नूं सारा कुछ मैं अर्पण कर दांगा सुरखरू होके, जिवें कर्जदार कर्जा ला देना इस तरह जावांगा चमकौर। ते अगे कहते अल्लाह यार खां कहते कुछ होर भी कहा महाराज ने अकाल पुरख नूं, खुदा नूं क्या, मैं तेरा हूँ बच्चे भी तेरे हैं मौला, थे तेरे ही हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे तू वही हाल है अच्छा। कहते मैं भी तेरा मेरे बच्चे भी तेरे, ते जेड़े हाल विच तू रखेगा वही हाल मेरे वास्ते अच्छा है चंगा है। भाणा मनना सीखना है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास पढ़ो। भाणा मनना किनू कहते हैं, रजा विच किवें चलिया जाता अकाल पुरख दी, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास पढ़ के पता लगना। कहते अगे फिर सिंघां बारे लिखते हैं अल्लाह यार खां जोगी, साफे कभी सिंहों के उठाते थे जमीन से। साफे तो कई ना अपने बजुर्ग पहला कहते होंगे साफा बन्निया है, साफा बन लै। तो साफे का अर्थ होंदा है सिर ते दस्तार बन लैनी। साफे कभी सिंहों के उठाते थे जमीन से, जेड़े खुले हुए सी दस्तारे दस्तार वो जमीन तो चुकते रहे महाराज 10वें पातशाह। केस इसके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से। जबी मतलब जमीन, जेड़े केस जमीन ना लगे सी झाड़े, ते जेड़े जमीन ना लगे सी चुके केस मारे सिंघां ने, वो तो कई दिनों तो जंग करते पे ते जिवें कोई पिया उवें नींद आ गई उन्होंने। केस भी खिलरे हुए सी। कहते सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से। कहते सर दे दस्तारे ठीक किते, सिर दे वाल ठीक किते, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से सही कर रहे सी मारा तरतीब। हाशा किसी मुर्शद में यही इसार नहीं है, यह प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। अल्लाह यार खा कहना मैं भी मनने वाला खुदा नूं, पर दुनिया ते ऐसा पकंबर ऐसा अवतार नहीं होया जिहड़ा सिंघां नाल इन्ना प्यार, अपने सेवकां नाल अपने सिखां नाल इन्ना प्यार करदा हो। कहते नहीं होएगा दुनिया ते, ना है ना होएगा, कहते हो नहीं सकता। थे देखते हर एक को गुरु दीदार तर से। कहते सारिਆਂ ਨੂੰ महाराज तक रहे सी, दर्शन दे रहे सी, दीदार महाराज कर रहे खालसे का भी। उल्फत की निगाहों से मोहब्बत की नज़र से, किरपा की मेहर नाल देख रही सी सारे सिंघां दे, बख्शिशां वरता रही सी सारियां ते। कहते उल्फत की निगाहों से मोहब्बत की नज़र से। उल्फत उल्फत कहते ने मित्रां वाले प्यार नाल वेखदे पए सी महाराज, ते कहते ने मोहब्बत की नज़र से बड़ी प्यार वाली नज़र नाल देख रहे सी अपने खालसे वाल। बांधे हुए पटके पे खिदमत थे कमर से। कमर कसे किसे दे पटके महाराज। था जागता कोई तो सरक जाते थे सर से। कहते कोई जागदा सी ते उस सिर तो कई बार दस्तारां इधर उधर हो जांदियां। कमाल। ते सच्चे पातशाह उन्होंने सही कर रहे थे। ये गढ़ी चमकौर का वाक्य कवि ने अल्लाह यार खां जोगी ने परोया।
जिन सिंहों ने कल मौत को सहेल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। बाली से शहीदों के हुए जब गुजरना, मुश्किल हुआ इस जा से कदम आगे को धरना। कहते जदों महाराज वो ਸਿੰਘਾਂ कोल आए, गरीब नवाज सतगुरु सारिਆਂ कोल, ते सारिਆਂ ਵੱਲ ध्यान नाल देख रहे ने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਅੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੱਟ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਲੀ ਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਹੋਏ ਜਬ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵਾ ਇਸ ਜਾ ਸੇ ਕਦਮ ਆਗੇ ਕੋ ਧਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਫਿਰ ਚੂੰਬਾ ਕਵੀ ਹਲਕੂਮ ਦਹਿਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਹਲਕੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਗਾਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਲਕੂਮ ਕੰਢੀ ਗਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚੁੰਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਜਕਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿਣ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਦਹਿਣ, ਦਹਿਣ ਲਿਖਿਆ ਮੂੰਹ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਨ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਬ ਪਾਈਤੀ ਆਏ ਤੋ ਚਰਨ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਪੋਥੀ ਫੜਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਪਾਈਤੀ ਆਏ ਤੋ ਚਰਨ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੋੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ वो कम है। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ने बड़ियां बख्शिशां खालसे ते कीतियां, बड़ियां मेहरां दियां प्यार दियां नज़रां वल नाल खालसे नूं तक्किया। ते अगे फिर अल्लाह यार खान जोगी लिखदा, थोड़े जे किरपा कर दिओ क्योंकि गुरु के शहीदां दा इतिहास बड़ा आनंद जा बने। कहंदे अल्लाह यार खान जोगी कहंदा है, बाकी थी घड़ी रात गुरु खेमे में आए। कहंदे जे रात बची हुई सी, महाराज अगे खेमे दे विच गए। कईयां ने कहा वो चबारा सी, और उत्ते पाया हुआ सी, इस तरह घड़ी ली, घड़ी बारे बयान किया। कहंदे बाकी थी घड़ी रात गुरु खेमे में आए, अंदर होर अगां चले गए महाराज, हजे रात सी। कहंदे सहजादे यहाँ दोनों ही सोते हुए पाए। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा अगे महाराज दे साहिबजादे सुते हुए सी दोवें। दोनों के रुख पाक से गैसू जो हटाए। कहंदे महाराज दे साहिबजादियां दे भी केस खिलरे हुए सी। वो महाराज ने केस जिहड़े मूँह ते सी साइड ते कीते, गेसू जो हटाए। अफलाक ने शर्मा के मोह मेहर छुपाए। कहंदे चंद्रमा भी शर्म दे मारे झुक गया भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल इन्ने सोहणे ने, उन्हां अगे मेरी तो कोई अहमियत नहीं है, इन्ने सोहणे सी महाराज दे लाल साहिबजादे। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा अफलाक ने शर्मा के मोह फेर छुपाए, उन्हें भी चंद्रमा ने भी मुँह छुपा लिया। सतगुरु ने दहन जब दहन पाक पे रखा, कुमलाते हर एक फूल के सर खाक पे रखा। यों सच्चे पातशाह महाराज जी देख रहे ने साहिबजादियां वाल। जदों देख रहे सी, प्यारे भाई दया सिंह भी देख रहे सी, ते प्यारे भाई दया सिंह जी भी पुछन लग गए महाराज क्यों की देख रहे हो साहिबजादे? ये सदा तुहाडे नाल रहणगे। ते अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है सोए हुए बच्चों को कहा सिर को पकड़ कर चल देंगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर। कहंदे भावें साहिबजादे सुते हुए सी पर उन्हां नाल गल्लां करदे ने। अब्बा दा मतलब हुंदा है पिता। कल नूं तुसी अपने अब्बा नूं छड्ड के चले जाओ, थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत ने उजड़ कर। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, कहंदे महाराज कहंदे इस तरह मेरी जिंदगी लिखी हुई सी। ऐसी महाराज की दास्तान है, मन भर जाता है सा संगी। अस तो कल भी महाराज अगे अरदास की सच्चे पातशाह अपने इतिहास की आप सेवा लै लियो। असी जदों याद कर रहे सी उदों भी मन भर है कि महाराज की दास्तान देखो कैसी। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जदों साहिबजादियां कोल लंघ रहे ने, फिर कहंदे फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। कहंदे वादा करके जाओ। इस तरह महाराज सुत्तियां कोल बचन कर रहे हैं। साहिबजादे सुते हुए ने महाराज दे। थे चार हो अब दो ही शहर यह भी ना होंगे। कहंदे चार सी मेरे जिगर दे टोटे पर हुण दो रह गए। शहर का मतलब अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया सवेरे शहर यह भी ना होंगे, सवेरे भी नहीं मेरे को होंगे। हम सब्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे। कहंदे मैं फिर भी सब्र करांगा जे ये भी ना मेरे को होंगे। बड़ा सोहना परोया गुरु के इतिहास में अल्लाह यार खां जोगी। भावें मुसलमान ने कितना सोहना लिखिया सच्चे पातशाह ने।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਮਜਲੂਮ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮਾਸੂਮ, 17 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਮਜਲੂਮ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਲਖਪਤ ਦਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋ, ਨਾਜੂ ਮੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ हुई अंधेर, दुनिया हुई अंधेर जब आंखों से टले हो, घर बाहर लुटा बाप कटा तुम पे चले हो। कह लगे अल्लाह यार खां जोगी कहंदा साहिबजादियां कोल जाके कहंदे मैं अपना सारा कुछ लुटा दिता, घर बाहर लुटा, अपना घर लुटाता, बाप कटा, अपने बाप का सिर कटाता। ये दुनिया नूं बचाउण वास्ते, इनू सुखी करन वास्ते, ते कहंदे ने तुम भी चले हो। इस तरह पुत्रां दे लिहाजे नाल जोगी जी ने वार्ता लिखी, जिवें पिता का प्यार हुंदा पुत्र नाल। घर बार लुटा दिता है, बाप नूं कटा दिता है, कहंदे तुम भी चले हो, हुण तुसीं भी चले हो। इस तरह साहिबजादियां कोल महाराज कुछ बोलते ने, अल्लाह यार खां जोगी लिख रहा। सो साध संगत जी, प्यारे भाई दया सिंह ने कहा महाराज नहीं, तुहाडा खालसा है, तुहाडे खालसे दे तुहाडा मेरा भरिया हथ होना चाहिए है, तुहाडे पुत्रां ते आंच नहीं आएगी, असी शहीदियां पावांगे जंग करके। ते कहणगे अजे रात चलती पई है, गड़ी दी रात, सत पौह दी। सतगुर ने मौका मौका से सबको बिठा दिया, हर बुर्ज पे फसील पे पहरा लगा दिया। सच्चे पातशाह ने सारे नूं कहा सी राम करो, किसी नूं पहरे ते ला दिता। यह मोर्चा इसे उसे वो दमदमा दिया, सिंहों का एक हिसार किले में बना दिया। सिंघां ने भी महाराज वास्ते आसन बनाया सी बड़ा सोहना। दीवार दर पे पुस्तों पे जब सिंह डट गए, डर कर मुहासरीन सभी पीछे हट गए। सारे पीछे हट गए सी। कहते जदों इस तरह की महाराज ने उत्थे नाकाबंदी की, तरतीब बनाई जंग की सच्चे पातशाह ने। ते कहते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहते अल्लाह यार खां जोगी कहता एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा, जिसका जिस जा पे सिंह अड़ गए झंडा वहां खड़ा। कहते एक एक फिर मारे, कहते सवा सवा लख न लड़ेगा इतने। महाराज दे वाक भी ने, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। प्यारे भाई दया सिंह जी इत्थे हुण एक एक ਜਿਹੜੇ बचन ਕੀਤੇ जी सवा लख न लड़ेगा, ਹੁਣ ਇੱਥੇ पूरे ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ मैं सवा लख न ਲੜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੰਦੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਐਂ ਥੋੜਾ 10 ਲੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। इस करके कहणगे सच्चे पातशाह महाराज जंग की विਉਂਤ भी बनाउण लगे। प्यारे दया सिंह नाल महाराज सारियां गल्लां करदे सी, क्योंकि पहले प्यारे भी सी ना प्यारे दया सिंह। महाराज जिवें तुसीं कहोगे उवें ही होवेगा, तुहाडा सिर ते हथ होना चाहिए सच्चे पातशाह। कह लगे जो सवेर हुई, एक नार खां एक ख्वाजा मरदूद ये आए सी। नार खां आया सी वेखना किन्ने कु सिंह ने भेत लैण वास्ते। एक तीर छड्या मार, कहंदे
ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਦੂਜਾ ਖਵਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਜਿੰਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਰਦ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਰਦ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਿੰਘ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਪ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੰਗ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੀ ਹਿੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿ ਲੰਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, मैं भी जंग करके शहीद होना चाहना। गोबिंद के दिलदार किले से निकल आए, वो देखिए सरकार किले से निकल आए। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि इस तरह जिवें जदों सिंह निकलते सी, जिवें लगता महाराज आप आ गए, क्योंकि खालसा मेरे रूप है खास। इस करके फिर जदों सिंह शहीद हो जाते हैं, फिर बाबा अजीत सिंह जी आप, महाराज ने आवाज़ नहीं मारी, आप बाबा अजीत सिंह जी आए। कहते गुरु पिता जी मैनू आग्ञा दो, मैं भी जंग करके शहीद होना चाहना। महाराज कहते बड़े खुश होए सच्चे पातशाह, कहते असीं तुहानू बुलाया नहीं, जदों कौम ते भीड़ बनेगी तेरे वर्गी जुझारू अपने आप ही पंथ दे पेश हो जाया करनगे, अपनियां जिंदगानियां लुटा दिया करनगे, कौम तो अपना आप वार देणगे, निशावर कर देन करनगे। ये प्रपार्टी बाबा अजीत सिंह जी की चलाई हुई है। जदों जदों भी भीड़ बनती है पंथ ते कौम ते, उदों उदों फिर ये जिंदगानियां अपनियां निशावर करते हैं। ते बाबा अजीत सिंह नूं तैयार करके महाराज ने आप सच्चे पातशाह ने, ते सच्चे पातशाह नाल 4 ਜਾਂ 5 ਸਿੰਘ भेजे। एक पासे प्यारे भाई दया सिंह, एक पासे प्यारे भाई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। गढ़ी के दरवाजे खोले। कहते जो बाबा अजीत सिंह जी गए मैदाने जंग विच, जिवें शेर सत्संग जी दहाड़दा, इस तरह भाजड़ा पा दित्तियां फौजां नूं। जिन्नियां मुगलों दीयां फौजियां अच्छ अच्छ करन लगियां। इन्नी तरतीब मार ने भरी हुई सी, इन्नी विਉਂਤ भरी हुई सी बाबा अजीत सिंह दे विच। ते जिहड़े विਉਂत नाल जिहड़ी तरतीब नाल जंग करदे सी हैरान हो जांदे सी। जिहड़ी तरतीब नाल विਉਂत नाल एडे व्यंग नाल जंग कर रहे सी बाबा अजीत सिंह जी। ते इत्थों तक कहंदे ने खून दियां नदियां चलातियां सी बाबा अजीत सिंह ने।
ऐसा जंग कीता। कहंदे वजे वड्डे वड्डे फौज के कमांडर भी कहंदे सी भी ये 10वें पातशाह महाराज आप आ गए ने, क्योंकि 10वें पातशाह ते बाबा अजीत सिंह का चेहरा मिलता जुलता। कलगी सी, बाबा जीत सिंह दी भी सिर ते कलगी सी। ते कहंदे जिवें शेरनी झूमदा हुंदा इस तरह कलगी दूरों 10वें पातशाह गढ़ी ते खड़ के देख रहे, ऐ जिहड़ी कलगी सी वो झूम रही सी। इस तरह जंग कर रहे सी बाबा अजीत सिंह जी। ते कहंदे पहला तीरां दी वरखा कीती, जदों तीर खत्म हो गए फिर तलवार फड़ ली। तलवार तो बाद नेजा, बरछा, खंजर, क्योंकि 10वें पातशाह आप तैयार करके भेज रहे, आप तैयार करके भेजे। कमर कसे च लाए शास्त्र महाराज ने, पत्थे च तीर आप भरे 10वें पातशाह ने, कमान कुसा आप आउंदे ने मोढे ते, नेजा बरछा आप फड़ाउंदे ने सच्चे पातशाह, ते विਉਂਤ भी दसदे ने। बस इक्को ही इच्छा है, जदों जंग करके शहीद हो गए तो मेरे वाल जरूर देखना, ये इच्छा है। मैं देखना चाहुंदा मेरा लाल किन्ने कु फट लैके, किन्ने कु फट खा के शहीद हुंदा है। कहंदे सहजादा जी जहाँ ने भागड़ थी मचा दी, यह फौज बघा दी, कभी वो फौज बघा दी। अल्लाह यार खान जोगी कहंदे भाजड़ा पा दित्तियां, कदी वो भजाती कदी वो भजाती, भज्जे फिरन अगे पिछे। जदों बाबा अजीत सिंह जी जंग कर रहे सी ते कहंदे जदों जंग करते करते बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो गए। जंग कर रहे सी जदों, अल्लाह यार खां कहंदे दूरों 10वें पातशाह महाराज कहंदे ने शाबाश पिशर, पिशर पुत्र साहिबजादा, शाबाद पिशर खूब दलेरी से लड़े हो। कहंदे जदों शहीद होने लगे ना, है ढैंदी कला च नहीं चढ़दी कला च महाराज कहंदे शाबाश पिशर, शाबाश पुत्रा। साहिबजादे नूं कहंदे साहिबजाद लाल जी शाबाश, खूब दलेरी से लड़े, बड़ी दलेरी नाल लड़े। इन्हां अखां ने देखा अपने साहिबजादे नूं जंग करदे। हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो, बई लड़ो भी क्यों ना। गुरु गोबिंद सिंह दा जिगर दा टोटा वड्डा, वड्डे टोटे हो, वड्डे फरियांद हो, वड्डे साहिबजादे हो, लड़ो भी क्यों ना है कमाल नाल। अल्लाह यार खान जोगी कहंदा महाराज ने दूरों शाबाश दित्ती ते बुलंद जगा आवाज़ विच जगारा भी छड्डिया महाराज। वेख लो रामचंद्र जदों बनवास गए सी ना, 14 साल दा सी, बस 14 साल कोई ज़्यादा वड्डे नहीं सी, उदों 11 साल की उम्र सी। उनका जिहड़ा पिता सी दशरथ महलां उत्ते खड़ा देख रहा सी पुत्र दा विछोड़ा। जदों पुत्र दिसनों हट गया तो महल तो छाल मार के मर गया। पुत्र नाल प्यार, अर्जन का पुत्र जिदन कुरुक्षेत्र के जंग विच मरिया सी, शास्त्र ला के थले रख दिता सी, भुब्बा मार मार के रोन लग गया सी। होर बड़े वलियां नबियां अवतारां दा लिखिया, जदों पुत्रां दी गल होई है तो रोन लग गए सी। एक कलगियां वाला पातशाह सी जिहड़ा गढ़ी च खड़ा बुलंद आवाज़ विच जगारा छड्डदा है ते नाले शाबाश कहंदा है। कहंदे फिर इन्ने नूं महाराज दा छोटा साहिबजादा, बस समाप्ति ते ये साध संग जी, छोटा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह वो खड़े हो गए, आके कहन लगे भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। सच्चा बादशाह मैं अपने वीर तो कदी जुदा नहीं होया, इन्ना प्यार सी। वो तो भाणा करतार दा ही, चारे लग लग हो गए, दो उस पासे 200 उस पासे, पर चारे साहिबजादे इकट्ठे बड़े रहिंदे हुंदे सी, भोजन छकदे इकट्ठे छकदे सी, प्यार बड़ा सी साहिबजादिਆਂ ਦਾ। पर भाणा करतार दा सी, 2-2 हो गए, 2 उस पासे 200।
कह लगे अल्लाह यार खां जोगी कहना महाराज अगे पेश हो गए बाबा जुझार सिंह। कहते भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं खाना नहीं, सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं, सोना नहीं भाता। कहना महाराज सच्चा पातशाह हुण वीर तो बगैर खाना पीना ते सोना भाउंदा नहीं है। भी दूसरे बेटे की सुनवी बेनती जिस दम, अल्लाह यार खां जोगी कहंदा भी दूसरे बेटे की सुनी बेनती जिस दम। कहंदे जदों बेनती सुनी बाबा जुझार सिंह दी, सर को दहन पाक से वैसे दिए पे हम। ते कह लगे फिर बाबा जुझार सिंह जी कहंदे ने मरने के लिए कहने लगे जाइए जम जम। कहंदे 10वें पातशाह कहंदे जाओ जरूर जंग में जाके शहीद हो। तो कहंदे रूठो ना खुदारा नहीं रोकेंगे कभी हम। कहंदे कदे रूठो ना, नाराज ना हो लाल जी साडे तो। छोटे साहिबजादे नूं कहंदे ने तुसीं रुठ गए हो, वड्डा वीर तुर गया, मैनूं नहीं आग्या दित्ती तुसीं। कहंदे रूठो ना नहीं रोकेंगे कभी हम। महाराज कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे असीं रोकांगे नहीं तैनूं। फिर कहंदे हमने था कहा बाप को जां दीजे धर्म पर। कहंदे मैं भी अपने पिता नूं कहा सी 9 साल की उम्र विच जा बलिदान दिओ, इन्हां नूं बचाओ। लोग कह देते हैं अब आपको जान दीजे धर्म पर। लै तैनूं भी हुण कह देना। पुत्रां नूं कहंदे ने प्यो नूं भी तोरिया सी ते उदों कहंदे सी शहीद पिता दा साहिबजादा गुरु गोबिंद सिंह शहीद पिता दा। ते हुण लोग तारीख बदल जाएगी, शहीद पुत्रां दा भी पिता ते शहीद पिता दा भी पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिंदा पिता भी शहीद जिंदे पुत्र भी शहीद। लोग कह देते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। लो तुहानूं भी कह देने जाओ जाके जान वार दो। सो कहते ने फिर 10वें पातशाह महाराज ने अपने छोटे साहिबजादे नूं आप तैयार किया। मरने से किसी यार को हमने नहीं रोका, फरजंद वफादार को हमने नहीं रोका। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा नहीं रोकिया। महाराज कहंदे प्यारे भाई दया सिंह कहंदे महाराज नहीं असीं शहीद होवांगे। तुसीं ना पुत्रां करके ना रहिंदा, पुत्र एक रख लो। महाराज कहंदे प्यारे दया सिंह जी असीं तुहाडे नाल ज़्यादा प्यार किया, पुत्रां नाल घट किया। कहंदे महाराज इस गल 'च कोई शक नहीं, तुसीं कीता पर एक पुत्र रख लो। महाराज कहंदे मेरे पुत्र पंथ दी मानत ने पता जिदन अंबर छकाया तुसीं कहा सी असीं सिर दिता है अंमृत दे बदले, ते गुरु भी सिर दवे। गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनना सी ना महाराज ने अंमृत छक के, ते गल नहीं बनती। असीं बचन कहा सी सारा सरबंस वार दांगे, पर गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह जरूर बनाओ, अंमृत जरूर छकाओ। साडे पुत्र साडा परिवार अमानत है, पंथ दी अमानत विच खयानत ना करो। कहंदे महाराज सच्चे पातशाह ने आप तैयार किया फिर बाबा जुझार सिंह जी नूं। आप सच्चे पातशाह तैयार करते हैं तो उनकी बाबत लिखिया भी अल्लाह यार खां जोगी ने भराई सी आवाज़ से बोले गुरु गोबिंद सिंह। भरी जी आवाज़ विच बोले गुरु गोबिंद सिंह महाराज। पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह। बड़े लाडा नाल तेन पालिया लाल जी। रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह। उस नन्हे से जा बाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह। छोटे साहिबजादे नाल गल्लां करदे ने, 14 साल की उम्र है। लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दे। कहंदे अल्लाह यार खां जोगी कहना मार कहंदे आ लाल मेरे मैं हथियार सजा दा तेरे ते। छोटी सी कमान तीर कमान छोटी सी, नन्ही सी तलवार
छोटी तलवार फड़ाना हथ विच। इस करके साध संगत जी अल्लाह यारखा कहते, अल्लाह यारखा जोगी कहना महाराज तैयार कर रहे ने, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जेड़ा असी खंजर दे रहे हैं ना तेनू, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना। तलवार श्री साहब शमशीर समझना। नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना। जेड़ा नेजा दिता ना तुहानू, ये गुरु तेग बहादुर महाराज का तीर समझना। दादे का तीर है तेरे दा। जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो होना नहीं दलगीर समझना। कहते जे किते वार हो जाए ना शरीर ते, 14 साल का किरपान दे वार तो होणगे, 10 लाख का घेरा तीर तो वजणगे ना। कहते जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना। कहते जदों आके तीर वजे ना मेरे लाल, तेरे कलेजे विच आके तीर वजणगे जदों, जख्म आए तो होना नहीं दलगीर समझना। दुखी नहीं होना, दलगीर नहीं होना। जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, सी नहीं करनी। ते कहने उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। भी सच्चे पातशाह कहते मेरी जान जिगर दे टोटे लगते जिगर, मुंह तो सी तक नहीं कहना। इस करके साध संगत जी जदों तैयार किया महाराज ने, तैयार करके ना दस्तारे दमाले सजा के, शास्त्र सजा के, कमर कासे जे सजा के, अपना खंजर कहते ले जाओ सिधारो तुम करतार को सौंपा। कहते जाओ हुण तुहानू भी मैं करतार नू सौंप दिता, तुम्हें करतार को सौंपा। मर जाओ या मारो तुम्हें करतार को सौंपा। इच्छा है कि वापस नहीं। ये दोवां साहिबजादे नूं मारने क्या, मर जाओ जा मारो, शहीदी पा देनी है, जंग विच आउणा नहीं है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ते कहंदे रब को ना विसारो तुम्हें करतार को सौंपा। सिक्खी को उभारो तुम्हें करतार को सौंपा। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे। प्यासे हो जात जाम शहादत तुम्हें बख्शे। कहते वाहिगुरु तुहानू हिम्मत बख्शे। साहिबजादे नूं कहंदे ने सिक्खी नूं उभारो जाके, प्यासे हो जाओ, प्यासे हो जाओ जाके जंग दे विच। जाम शहादे तुम्हें बख्शे, ते जाके शहादत दा जाम पी लो। इस तरह महाराज जो तैयार करके प्यारे भाई दया सिंह साध संगत जी, वो तो सिंह सी महाराज दे, कहते कई इतिहासकार कहते वो भर लेंदे सी अखां भी धन गुरु कलगीधर पातशाह, धन गुरु है, धन गुरु का जिगरा। तो कहते जो तैयार करके एक पासे प्यारे भाई दया सिंह जी गढ़ी का दरवाजा खुलन लगे ने, तो महाराज बचन करते ने बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया। सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। सच्चे पातशाह कहते तुसी ओए बेड़े नूं पार लाउण वाले खवैया हो बेड़े दे, अपना सिर भेटा कर दो, धर्म की नैया चला दो। आ धर्म की की लोड़ है? ये धर्म नूं चलाउण वास्ते गुरु ने अपने लालां दे सिर वारे ने। ते अगे कहंदे ने लह देख के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। कहते जाओ मैदाने जंग विच, उत्थे तेरा भरा भी तेरा राह तकदा पिया। अल्लाह यारखां जोगी कहंदा पिया खास है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें। कहते जुझार सिंह भी मेरी एक खास है तेरे अगे। तो कहंदा महाराज की खास? कहंदे खास मेरी ये है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, ऐसा जोर तेग दा दिखाओ असी देखते रहिए। छोटे हो भावें पर दुश्मन दी फौज हस हस करे। ते एक इच्छा मेरी, प्यारे भाई दया सिंह जी कोल खड़े ने, कमाल दी गल है। साहिबजादे ते पिता दी वार्तालाप हो रही आपस।
हम आँख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखे। कहते एको ही इच्छा है, खास है मेरे अंदर, जदों बरछी तेरे कलेजे विच वजे, सीने विच वजे, उदों तेरा मूँह मेरे वल होना चाहिए, गड़ी वल होना चाहिए, मैं देखना चाहुंदा तुहानूं। ते कहण लगे जदों फिर दरवाजा खुलिया, बाबा जुझार सिंह जी गए मैदाने जंग विच। जब फतेह गजा कर गए जुझार ते रन में, हम शेर बघेला नजर आने लगे बन में। कहते बाकी तो शेर अगे बस छोटे मोटे जानवर ही नजर आते, शेर सी ना गुरु के साहिबजादे। हम शेर बघेला नजर आने लगा बन में, बाकी तो होर ही गिदड़ जे बकरियां भेडां दी नजर आउण लगियां गुरु के लाल में। नन्ही सी कजा बोली मैं आई हूँ शरण में, दिलवाओ अम्मा गुशाए दमान कफन में। मैं जिसके हूँ कब्जे में वो काबू में है मेरे, गुरियाई का बल नन्हे से बाज में है तेरे। इस तरह कहते कुछ अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने बाबा जुझार सिंह बारे, बड़ा जोर दिखाया। कहते महाराज ने ना देखिया उम्र घट है लाल दी, ते फौज दी जिहड़ा घेरा बड़ा वड्डा है। महाराज ने उत्थे तीर छड्डिया, एक एक तीर विचों कई कई तीर, ते जिवें जिवें बाबा जुझार सिंह अगे वधदे गए, उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे तीर दी वर्खाएं उपर उपर ही जांदी। तीर तीर दीयां छावां दे थल्ले भेजिया महाराज बाबा जुझार सिंह, तीर छड्डे महाराज। जदों फौजां दा पैंदा सी ना भार ज़्यादा, बाबा जुझार सिंह ते ज़्यादा हमला हुंदा सी, एकदम महाराज तीर छड्डदे सी। शाबाश मेरे जाबाज, शाबाश मेरे लाल साहिबजादे लगते जिगर, शाबाश। नाले तीर छड्डदे ने, नाले महाराज लाशेरी देंदे ने। अल्लाह यार खा कहता है 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, एक हमले में इस एक ने 21 को मारा। कईयां नूं कहते मार दिता बाबा जुझार सिंह ने। इस तरह कहते जदों जंग करते 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 अगे वधदे गए वो महाराज दे जिहड़े तीर बख्शे वो छड्डे, सिरी साहब ते छोटा खंजर, फिर खंजर भी मारे, खंजर नाल भी मुकाबले किए। अगे जाके जदों वीर दा शरीर पिया सी बाबा अजीत सिंह दा, उत्थे पहुँच गए। महाराज कहते इच्छा सी ना वड्डे वीर नाल भी अगे वध के लड़े, है छोटा पर कमाल कर दी जंग विच जाके। ते कहते जदों वड्डे वीर कोल पहुँचे ना, अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, सर गोद में लेकर काम भाई से बोले। कहते बाबा जुझार सिंह जाके ना वड्डे वीर नूं जदों तक्या, सर गोद में लेकर कहा भाई से बोले, चेहरा साफ करके गोद विच लै लिया। ये अल्लाह यार खां जोगी दा अपना वलवला है, अपना उनका अंदाजा है, भावें इतिहास च नहीं उन्हें लिखिया है। कहते छोटा भरा फिर गोद विच लैंदा वड्डे भरा दा सिर मैदाने जंग विच। इस ख्वाब गिरा से कहीं होशियार तो बोलो, हम कौन है देखो तो जरा आँख तो खोलो। कहते असी कौन आ, वड्डे वीर नूं कहते हैं अखां तो खोल के वेखो। जिंदे नाल इन्ना ज़्यादा प्यार तुसीं करदे सी जुझार सिंह नाल, वड्डे वीर नूं गोद विच लैके पुछदे ने हम कौन है देखो तो जरा आँख तो खोलो, अखां खोल के तो वेखो। छोटा भरा तेरा है जुझार सिंह। ते अगे कहते ने सोने की ही ठानी है अगर मिल के तो सोने। कहते जे सौण की ठानी है तुसी भी सौ ही गए, तो फिर कहते आप मिल के ही सोवांगे, मिल के तो सोने। तो कहते भाई तुम्हें जब गंज शहीदा की जमी है, ठानी हुई हमने भी बसेरे की यही है। कहते फिर छोटे भरा ने भी
दिल विच ठानी हुई है कि बसेरा तेरे नाल ही करना है। फिर ठानी हुई हमने भी बसेरे की यही है, कहते असी भी फिर हम ठान लिए भी तेरे नाल ही सोना है। इतने में खदंग आके लगा आए जिगर में। खदंग सासन जी खदंग दे अर्थ ने तीर। कहते अल्लाह यार खां जोगी कहते इन्ने नूं आके दुश्मन दा तीर वज्जा जिगर विच आ गया। इतने में खदंग आके लगा हाय जिगर में, था तीर कलेजे में या कांटा गुल तर में। कहते तीर छाती विच आके वज्जा, दिल विच खंजर वज्जा, तीर वज्जा बाबा जुझार सिंह दी छाती दे विच। इस करके साध संगत जी उधर महाराज बुलंद आवाज विच जगारा छड्डदे ने ते नाले कहा सी लाल जी जदों शहीद होगे मेरे वल मुख करना है। तो जदों बाबा जुझार सिंह जी शहीद होए, बरछी अंदर गई, शरीर च लगी, छाती दे विच तीर। पिता वल मुख करके कहंदे लो पिता जी, गुरु पिता जी तुहाडी खास ही कि मैं तीर खा के बरछी खा के मरां। जिवें बाबा अजीत सिंह नूं कहा सी मैं वेखां तेरियां अंदरां निकलदियां वेखां मैं। धन गुरु गोबिंद सिंह, धन जिगरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते कहंदे बाबा जुझार सिंह ने उधर नूं मुख कर लिया, लो पिता जी तुहाडी खाश पूरी कर दी। कहंदे बुलंद आवाज विच जगारा छड्डदे ने, नाले कहंदे ने तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा। नाले कहंदे ने पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। मैं उजड़ जावां पर मेरा खालसा पंथ वसे। सानू वसाउण वास्ते, सानू सुख देण वास्ते महाराज ने अपना परिवार कुर्बान कर दिता। पर असी अज गुरु दे साहिबजादियां दे शहीदी वाले दिन भी सुते पे हैं। किन्ना को प्यार, असी अज भी सुते पे हैं ते गुरु महाराज ने अज लाल वारे सी साडे तो। सिखा ज़्यादा नहीं, वो दिन तां तू याद कर लै की बीती महाराज दे लालां ते। महाराज ते की बीती वो सुन ते लै, किते तेरे अंदर जागे, तेरे अंदर भी जज्बात जागण, तेनों याद आवे अपना इतिहास। कहंदे महाराज दे दोवें लाल शहीद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे असी हुण अगले दिन आप शहीद होवांगे। प्यारे भाई दया सिंह कहंदे नहीं महाराज तुसी नहीं शहीद होगे। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगर था, कटवा दिए सिस शाम ने गीता के को सुनाकर। इस करके कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का रुतबा नहीं कोई लै सकदा। महाराज कहंदे असीं शहीद होवांगे। कहंदे नहीं महाराज, महाराज कहंदे नहीं खालसा जी। फिर खालसे ने खालसे रूप में जिहड़ा महाराज ने रुतबा बख्शा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास। इकट्ठे होके फिर खालसे ने सच्चे पातशाह नूं हुक्म लाया जां बेनती। फिर महाराज ने कहा सी बचन कीते खालसे दी कदे नहीं मुड़ांगे। महाराज कहंदे जावांगे गज वज के जावांगे, तुसी कहंदे हो जावांगे। कहंदे महाराज असी शहीद हो जाएंगे पर तुसी जे शहीद होगे तुहाडे वर्गा गुरु नहीं मिलना, पर जे तुसी इत्थे तुर गए फिर लखां होर सजा दोगे साडे बंदे। सजाए से ना दमदमा साहब 1,30,000 नूं अंमृत छकाया सी महाराज ने। कहंदे महाराज फिर ताड़ी मार के ताड़ी साहब गुरुद्वारा पुत्तां दी लाशां दे कोलों लंघ के गए सी महाराज। प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई मान सिंह सी नाल। जदों आपां गुरुद्वारे गए ना, उपर जिहड़ा गुरुद्वारा उत्तों थल्ले आउंदे आ कतलगढ़ साहब, उत्थे कतल होया, उत्थे शहीद होए महाराज दे साहिबजादे कतलगढ़ साहब कोल। उत्तों थोड़ा अगे जाके जिथे पिपल है गुरुद्वारा ताड़ी साहब, इत्थे पिपल हुंदा सी पट दिता गया। इत्थे महाराज जिहड़ा ख्वाजा मरदूत बैठा सी लखां दी फौज लैके, जिहड़ा 10वें पातशाह नूं जिउंदा जां मरिया लैके जावांगा मैं दावा बोलदा सी, उहदे कोल आके ताड़ी मारी सी महाराज ने। पीर ए हिंद मैं रविंद आके ताड़ी मारी सी। जा रहा जे किसे च
ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ यार खान जोगी ने लिखा है, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। इत्थे पिता ने अपने बच्चों को कटाया है, परिवार में लेखे लाया है। कहते जे हिंद विच तीर्थ है दुनिया विच, तां फिर एक चमकौर शब्द है। होइयां भुलां दी माफ़ी। सो कोट कोट नमन करिए शहीदां दे चरनां विच। भावें सासन जी समाप्ति करन नूं आपां पहिलां भी कर सकते हैं, पर आ जिहड़ा दिन है ना, 1 साल बाद नसीब होना है। तो बाद चो कोई बोले सी माफ़ी मंग लांगे भी वध टाइम लाता तुसीं, तुहानूं पता नहीं सी, वो नहीं सी। कह सकणगे, कहणगे, कह भी सकदा है कोई, पर वो गल दी आपां माफ़ी मंग लांगे जरूर। पर जिहड़ा आ दिन है ना अज महाराज दा, सच्चे पातशाह साहिबजादे ना, इहदे विच जुड़ना भी बहुत जरूरी सी, अति लाजमी सी। भागां वाले जिन्हां ने जुड़ के लाहा लिया, बराग भी आया गुरु दे पुत्रां दी शहादत दा, जो दासदान सुन के आ जांदा सासन जी, मन भर हुंदा है गुरु दे साहिबजादियां दी जदों शहीदी सुनीए। जिवें जिवें वारता हुई, जिवें जिवें महाराज ने साडे तो वारे अपने पुत्र, जदों सुनीए मन भर हुंदा है। करन वाले दा भी सुनने वाले दा भी मन भर हुंदा है। पर कहंदे उहदी याद विच रोना परवान है, उहदी याद विच परिवार विच संसार विच रोना, उहदे लई रोना व्यर्थ है, पर उहदी याद विच रोना परवान है। एक एक अखां दा हंझू भी परवान होएगा अपना, उहदी याद विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी याद, उहदे साहिबजादियां दी याद विच निकले ने, परवान जरूर होणगे। इस करके शहीदां नूं कोट कोट नमन, सारियां दी हाज़री बेनती, महाराज अपनी प्रवान करन। होइयां भुलां दी माफ़ी। आओ अरदास करिए, फिर गुरु की देग ते हुक्मनामे सुन के फिर जान दी खिचला करनी है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की